Hello everyone, welcome back to my channel. This is third video on group theory in chemistry. Now in this video I am going to continue the topic point groups and symmetry elements for several molecules. In this video I am going to discuss the CN point group, which is cyclic point group. Now CN is also used for proper axis of rotation of order n. Now first example is hydrogen peroxide molecule. This is hydrogen peroxide molecule H2O2. This is symmetry info. Now there are two elements, identity and C2 axis of rotation. C2 means rotation by 360 by 2 degrees, because theta is equal to angle of rotation, which is angle by which any axis will rotate a molecule. Theta is given by 360 by n. Here n is equal to 2. This is order of axis, which is 2. 360 by n is equal to 180 degree. So C2, when the C2 axis will operate on a molecule, it will give a rotation by 180 degree. This is rotation by 180 degree. Let's see like this. This is rotation by 180 degree. Here there are two elements, identity and C2. So point group is C2 and order is 2. Now coming to next molecule, titanium dimer. So these are all molecules. Okay. This brown one is titanium, green chlorine, oxygen, nitrogen. These are carbon atoms. This is titanium. Now this dimer also have only two symmetry elements. One is identity, the other one is C2, which is proper axis of rotation of order 2, and when C2 will operate on a molecule, it will give a rotation by 180 degree. So let's apply C2 on this molecule and let's see what will happen when we operate it. Let's operate it. This is operation. This is 180 degree rotation. This is a complicated molecule, so it might not be visible to you. This moiety goes here after 180 degree rotation. This moiety goes here. This moiety goes here. Now coming to simple molecule, hydrazine. This is hydrazine, H4N2 molecule. These are symmetry informations. Now this molecule also have one identity element and one C2 proper axis of rotation. This is proper axis of rotation C2 in hydrazine. Now when this C2 will operate, it will operate like this. This type of rotation. This type of rotation given by C2. Now coming to next molecule, which is lambda cis cobalt ethylene diamine dichloride complex, which is this complex. These moieties, which are this moiety and this moiety. These four moieties, if we look at it carefully, it forms
a tetrahedral like structure, and these two five-membered ring. This five-membered ring, this is cobalt, chlorine, and you can see all atoms. This five-membered ring, 1, 2, 3, 4, and fifth is cobalt atom. This is ligand, ethylene diamine. These two blue one atoms are nitrogen atoms. These are donor atoms in ligand. So this ethylene diamine ring is bidentate ligand. Denticity is 2. There are two donor atoms, two nitrogen atoms, which donate to cobalt atom. And this is another ethylene diamine ring. So this is the structure of molecule. Let's see symmetry elements. One is identity and other one is C2 axis of rotation. This is C2 axis. Let's see how C2 operates. C2 operates like this. 180-degree rotation, as I told you. 180-degree rotation will give same indistinguishable structure. मतलब कि 180 डिग्री के रोटेशन के बाद जो ये वाली मोइटी है वो इस मोइटी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी. ये मोइटी जहाँ अभी है उसी जगह पर ये वाली मोइटी 180 डिग्री रोटेशन के बाद सुपर इम्पोज हो जाएगी. इसीलिए यहाँ पर C2 एक्सिस है. इसका पॉइंट ग्रुप भी C2 है, ऑर्डर 2 है. इसको देखते हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि ये सिंपल है. This is a rather simpler complex. This also has this red, look at this red and blue atoms. These lines, this moiety and this moiety forms a octahedral kind of structure. If we operate C2 axis, this atom goes here, this moiety goes here. This is 180 degree rotation. Look at this. This is 180 degree rotation. Now coming to next molecule, triethylene phosphine. Triphenyl phosphine. This is triphenyl phosphine, which is a rather simpler molecule. This looks like this. I hope you have heard about VSEPR theory, which is valence shell electron pair repulsion theory, which tells us about the structures of molecule, that is the stereochemistry of a molecule. ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से मैनेज करता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में उसके एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो. तो हम सबसे पहले VSEPR थ्योरी को लगा करके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं. उसके बाद उस स्ट्रक्चर पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं. अभी तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पर है, लेकिन आपको मॉलिक्यूल को देख करके सिमेट्री एलिमेंट्स को बताना आना चाहिए. देखते हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, एक C3 एक्सिस है. दिस इज C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन. This is C3 axis. Let's see how it operates. C3 means rotation by 120 degree. 120
थीटा इज इक्वल टू 120। थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पे? 3। 360/3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो कितना डिग्री का रोटेशन देगी ये C3 एक्सिस? 120 डिग्री का। इस तरीके से रोटेट होगा 120 डिग्री का एंगल। ये 120 डिग्री एंगल बनेगा। तो अब हम देखते हैं C3 स्क्वायर। C3 स्क्वायर इज नथिंग बट we are operating C3 axis twice in a molecule, that is पहले हमने एक बार C3 को ऑपरेट किया और हमारा कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना, उसके बाद हमने उसके ऊपर फिर से एक बार C3 को ऑपरेट किया, फिर जो फाइनल स्ट्रक्चर बना वो इंडिस्टिंग्विशेबल है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो दोनों इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कि एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे C3 एग्जिस्ट करती है। तो जो C3 एक्सिस है वो 240 डिग्री रोटेशन देगी। यहाँ पर पॉइंट ग्रुप है C3, ऑर्डर 3 है। अब हम देखते हैं C4 एक्सिस। टेट्राएजा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स। इसमें आइडेंटिटी एक C4 एक्सिस है, एक C2 है और एक C3 है। C4 एक्सिस को देखते हैं। C4 एक्सिस को ऑपरेट कराएंगे तो C4 एक्सिस कैसे C4 एक्सिस 90 डिग्री का रोटेशन देती है। आप निकाल सकते हैं 360/n से। ये 90 डिग्री का रोटेशन देती है, यानी कि ये एटम जो है यहाँ चला जाएगा। तो 90 डिग्री का रोटेशन दिया C4 एक्सिस ने और हमें एक सेम इंडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल मिला। हम एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे C4 प्रिंसिपल एक्सिस है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस है। तो हम C4 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 4 एक जैसी मोइटी हैं। देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। तो एक C4 एक्सिस यहाँ पर से डाल सकते हैं, जो कि उससे रोटेट करने पर एक जैसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये है C2 एक्सिस। यहाँ पर C2 भी है, C4 है तो C2 भी होगी। देखो C2 को ऑपरेट करने पर 180 डिग्री का रोटेशन होता है, यानी कि ये जो ब्लू एटम है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला ब्लू एटम यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ध्यान से देखिए 180 डिग्री का रोटेशन। ना ये है C4 एक्सिस का क्यूब, यानी कि 270 डिग्री का रोटेशन हम यहाँ पे कराएंगे, तब भी हमें सेम मॉलिक्यूल ही मिलेगा। तो हमारा ऑर्डर है C4। ये है हमारा अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है। इसमें ये एक्सिस है और ये है हमारा FeMe5CpP5 मॉलिक्यूल। ये जो रिंग्स हैं ये साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग्स हैं और ये जो एमी है ये मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग पर 5 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये CH3 ग्रुप है, ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये सब मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग पर। ये जो ब्राउन वाली रिंग है और ये जो गोल्डन वाली रिंग है ये इस तरीके की है, और जो ये बीच में ब्राउन एटम है ये आयरन एटम है Fe, और जो गोल्डन वाले एटम्स हैं ये फॉस्फोरस एटम है। तो इस तरीके का इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। जो साइक्लोपेंटाडाइईन होता है रिंग, उसकी हेप्टिसिटी यहाँ पर है 5। अब हेप्टिसिटी क्या होता है? हेप्टिसिटी को ईटा से शो करते हैं हम। हेप्टिसिटी इज
number of atoms of a ligand which are attached to a metal atom, मतलब किसी मेटल एटम से किसी लिगेंड के कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं उसको हेप्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे हेप्टिसिटी इस रिंग की 5 है, दोनों रिंग की 5-5 हेप्टिसिटी है। ईटा वन भी 5 है, ईटा 2 भी 5 है। तो जो साइक्लोपेंटाडाइइन ये रिंग है, इस रिंग की 3 हेप्टिसिटी पॉसिबल होती हैं। एक तो 1, एक होती है 3 हेप्टिसिटी और एक होती है 5 हेप्टिसिटी। मतलब ये एक एटम से भी जुड़ सकता है, 2 एटम से भी और 3 एटम से भी, मतलब सॉरी 1, 3 और 5 एटम से, 1 एटम से, 3 एटम से और 5 एटम से, 5 के 5 से भी ये जुड़ सकता है मेटल एटम के साथ। तो ये है इसकी एक्सिस, ये C5 एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो 5 एटम है तो हम इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं और इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर आएगा। तो C5 कितना है, 360/5 डिग्री का रोटेशन। 360/5 डिग्री रोटेशन होने के बाद हमें सिमिलर इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि 72 डिग्री रोटेशन से भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे C5 एक्सिस है। आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए 72 डिग्री का रोटेशन, और ये भी है 72 डिग्री का रोटेशन। दोनों चीजें एकदम साफ साफ दिखाई दे रही हैं। 72 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर दे रहा है, ये इस जगह पे सुपर इम्पोज हो जा रहा है। और यहाँ पे C5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार C5 एक्सिस को ऑपरेट करा रहे हैं, यानी कि 72 डिग्री का रोटेशन 2 बार कराएंगे। ओवरऑल 144 डिग्री का रोटेशन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा है कि C5 का क्यूब, C5 क्यूब करेंगे, ये C5 एक्सिस इस तरीके से जा रही है। अब ये C5 का क्यूब कर देंगे हम, तो C5 का क्यूब करने के बाद कितने डिग्री का रोटेशन आएगा, C5 का क्यूब करके हमारा 216 डिग्री का रोटेशन होगा। और 216 का रोटेशन भी हमें सेम स्ट्रक्चर इंडिस्टिंग्विशेबल देगा। C5 का 4 करेंगे, 4 टाइम्स रोटेट करने पर 288 डिग्री का रोटेशन आएगा, जो कि हमें सेम इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर देगा। तो यहाँ पे C5 4 भी एग्जिस्ट करता है, और C5 को 5 टाइम्स ऑपरेट करने पर हमारा पूरा 360 डिग्री का रोटेशन होता है। तो C5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो यहाँ पर है, इसीलिए हमने यहाँ पे C5 को नहीं लिखा हुआ है। ये है C5 4 का रोटेशन। I hope this video for this cyclic point group was clear to you and it helped you to understand the concept. So if you like this video, give it a big thumbs up, and if you are new to my channel, subscribe to my channel, share this video. Thank you.